اب یورپ کے حکمرانوں کے لشکر کی حالت عجیب و غریب تھی۔ مختلف حکمران اور سالار اپنے طور پر سلطان صلاح الدین سے رابطہ قائم کر رہے تھے تاکہ صلح ہو جائے اور جنگ سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو اندر ہی اندر سلطان سے گفت و شنید کرنے لگے تھے تاکہ سلطان انہیں اپنے ماتحت رکھتے ہوئے کچھ علاقوں کا والی بنا دے تاکہ وہ امن سے رہ سکیں۔ اس سلسلے میں یورپ کے لشکر میں سب سے پہلے ایک شخص کونریڈ حرکت میں آیا۔ اس نے سلطان صلاح الدین کے ساتھ نامہ و پیغام کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس نے سلطان کی خدمت میں گزارش کی کہ اگر سلطان ساحلی شہروں صدون اور بیروت کا اسے حاکم مقرر کر دے تو وہ یورپ کے لشکر سے علیحدہ ہو جائے گا، سلطان کا ساتھ دے گا، سلطان کا ماتحت بن کر رہے گا اور آئندہ عیسائیوں کے بجائے مسلمانوں کا ساتھ دے گا۔ لیکن سلطان جنگ کے لیے تیار تھا۔ وہ ہر صورت میں یورپ کے لشکر کو فلسطین سے نکالنا چاہتا تھا، لہٰذا سلطان نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ ایک اور سردار جس کا نام مارکوئس تھا وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلطان کی خدمت میں اس نے یہ گزارش کی کہ بیت المقدس کا حکمران قبیغائی آف لوزگران تھا جسے سلطان نے شکست دی اور جنگ میں حصہ نہ لینے کے عوض آزاد کر دیا، لیکن اس نے سلطان سے بدعہدی کی اور جنگ میں شامل ہوا۔ بعد میں بالیان بیت المقدس کا حاکم بنا، اس نے بھی سلطان سے بدعہدی کی۔ اس نے سلطان کو یقین دلایا کہ اگر سلطان اسے اپنی طرف سے بیت المقدس کا والی مقرر کر دے یا کسی اور علاقے کا حکمران بنا دے تو وہ سلطان کا ساتھ دے گا۔ خود انگلستان کے بادشاہ رچرڈ کی حالت یہ تھی کہ وہ بھی صلح چاہتا تھا، جنگ سے گریز کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر جنگ نے طول پکڑا تو سلطان صلاح الدین اور اس کے لشکری انہیں کاٹ کر رکھ دیں گے، لہٰذا اس نے بھی اپنا ایک ایلچی سلطان صلاح الدین کی خدمت میں روانہ کیا اور سلطان سے اس نے گزارش کی کہ بیت المقدس کا علاقہ اسے دے دیا جائے۔ جنگ حطین میں سلطان نے عیسائیوں سے ان کی اصل صلیب چھین لی تھی، وہ واپس کر دی جائے، اس طرح صلح ہو جائے گی اور یورپ والے واپس چلے جائیں گے۔ سلطان نے رچرڈ کی اس پیشکش کا جو جواب دیا وہ بڑا قابل غور ہے۔ سلطان نے جواب میں کہلایا، بیت المقدس تم سے زیادہ ہمارے لیے مقدس مقام ہے، چونکہ یہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے تھے اور قیامت کے دن ساری امت یہیں جمع ہوگی۔ یہ ہرگز مت سمجھنا کہ اس سے ہم دستبردار ہو جائیں گے یا تمہاری تجویز پر عمل کریں گے۔ جہاں تک فلسطین کے علاقوں کا تعلق ہے وہ دراصل ہمارا ہے۔ تم نے ماضی میں مسلمانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر فتح کر لیا تھا۔ اگر اس وقت مسلمان کمزور نہ ہوتے اور ان میں اتفاق ہوتا تو تم یورپ والے ہرگز ان علاقوں کو فتح نہ کر سکتے تھے۔ اور سنو، جب تک جنگ جاری ہے تب تک انشاءاللہ تم اس کا ایک پتھر تک نہ ہلا سکو گے۔ جہاں تک تمہاری اصل صلیب کا تعلق ہے وہ میرے قبضے میں رہے گی اور جب تک یہ ہمارے لیے فائدہ مند رہے گی ہم اسے اپنے پاس رکھیں گے۔ ہم صرف اسلام کے مفاد کی خاطر اس سے دستبردار ہو سکتے ہیں۔ جب انگلستان کے بادشاہ رچرڈ نے دیکھا کہ سلطان صلاح الدین کسی تدبیر کو قبول نہیں کرتا تب اس نے جنگ سے جان چھڑانے کے لیے ایک اور حربہ استعمال کیا۔ اس نے سلطان صلاح الدین کو یہ پیشکش کی کہ وہ اپنی بہن جس کا نام جون تھا جو کبھی صقلیہ کی ملکہ ہوا کرتی تھی، اس کا رشتہ سلطان کے بھائی سیف الدین العادل کو دے گا اور سلطان اپنی طرف سے عکا، اسکلان اور جافا جیسے شہر رچرڈ کی بہن کو جہیز میں دے دے۔ باقی ماندہ فلسطین کا علاقہ صلاح الدین اپنے بھائی کے حوالے کر دے اور اس طرح یہ دونوں میاں بیوی فلسطین پر حکومت کرتے رہیں۔ دوسری بات رچرڈ نے یہ کہی کہ صلیب مقدس عیسائیوں کے حوالے کر دی جائے اور تیسری یہ کہ سلطان کے پاس جس قدر نصرانی قیدی ہیں انہیں رہا کر دیا جائے اور اگر یہ شرائط منظور کر لی جائیں تو یورپ کا لشکر واپس چلا جائے گا۔ رچرڈ سلطان کے ساتھ جنگ کرنے سے اس قدر گھبرایا ہوا تھا کہ وہ ہر صورت میں صلح کرنا چاہتا تھا، لیکن سلطان نے جب اس کی کسی شرط کو ماننے سے انکار کر دیا تب اس نے اپنے ایلچی بھجوا کر سلطان کے بھائی الملک العادل کی دعوت کی۔ الملک العادل ایک بہادر اور شجاع آدمی تھا، کوئی اور ہوتا تو دشمن کے لشکر میں نہ جاتا، لیکن رچرڈ کے بلانے پر وہ اس کے لشکر میں گیا۔ رچرڈ نے اس کی بہترین دعوت کی، اس کی آؤ بھگت کی۔ وہ دراصل سیف الدین کو اپنے ہاتھ میں لے کر صلح کر کے جنگ سے جان چھڑانا چاہتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آخر میں رچرڈ نے یہاں تک بھی سلطان کو پیشکش کی کہ اگر سلطان رچرڈ کی بہن جون سے العادل کی شادی نہیں کرنا چاہتا تو اپنی خوبصورت اور نوجوان بھانجی بھی العادل سے بیاہنے کے لیے تیار ہے، لیکن جنگ ختم کر دی جائے۔ لیکن سلطان نے رچرڈ کی اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا۔ اب موسم سرما اپنے عروج پر آ گیا تھا۔ فلسطین اور شام کی سرزمینوں میں موسموں کا بڑا عمل دخل تھا، لہٰذا جب بارش ہوئی تو سردی نے اپنا زور پکڑا۔ اپنے لشکریوں کو محفوظ مقامات پر رکھنے کے لیے سلطان صلاح الدین نے لشکر کا ایک حصہ تو رملہ کے مقام پر معمور کیا جہاں سے ایک شاہراہ بیت المقدس کی طرف جاتی تھی اور باقی لشکر کے ساتھ وہ بیت المقدس کی طرف گیا۔ اب بارشیں شروع ہو گئی تھی اور چاروں طرف کیچڑ اور دلدل کا سا سما برپا ہو گیا تھا۔ رچرڈ اور دوسرے یورپی حکمران اتنا عرصہ قیام کرنے کے باوجود ابھی مقامی موسموں کو نہ سمجھے تھے۔
लिहाजा दिसंबर के महीने में यूरोपीय लश्कर ने अपने सारे हिमायतियों के साथ उस शहरा पर कूच किया जो बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाती थी। वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ 8 मील आगे बढ़े होंगे कि उन पर क़यामत बर्पा हो गई, इसलिए कि सुल्तान गो उस वक्त बैतुल मुक़द्दस में मुकीम था, लेकिन उसके मुखबिरों ने दुश्मन की पेशकदमी की इतला कर दी थी। लिहाजा सुल्तान बर्क रफ्तारी से रमला पहुंचा, जहां पहले से उसका एक लश्कर मुकीम था। जो ही यूरोपीय रमला की तरफ बढ़े, सुल्तान इंतहाई खौफनाक अंदाज में यूरोपीय लश्कर पर हमलावर हुआ। मैदान जंग के अंदर यूरोप वालों का खून बहने लगा, लाशें इधर उधर बिखरने लगी थी। अब सुल्तान और उसके लश्करियों ने एक और काम किया। उन्होंने यूरोप के लश्करियों पर हमलावर होने के साथ साथ लश्कर के अंदर जो बारबरदारी के जानवर थे, उन पर असला और खुराक का सामान लदा हुआ था, उन पर हमलावर होना शुरू कर दिया और यूरोप वालों से जानवर छीनकर उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इस तरह सुल्तान दोहरी मुसीबत बनकर दुश्मन पर वारिद होने लगा। इसी दौरान सर्दी और बर्फबारी के तूफान उठ खड़े हुए। तेज बारिश और तुंद हवा खेमों को उड़ा रही थी। घोड़े सर्दी और नमी से मरने लगे। साथ ही यूरोप वालों के पास जो जरूरत का सामान था, सुल्तान और उसके लश्करियों ने छीनना शुरू कर दिया। यूरोप वालों ने जो सुअर का गोश्त महफूज रखा था, वो सड़कर खराब हो गया, खाने के काबिल न रहा। इसके अलावा यूरोप वालों के पास बोसीदा तलवारें, नेज़े और दूसरे हथियार थे। वो बारिश के बायस इतने जंग आलूद हो गए थे, बार बार रगड़ने पर भी वो साफ ना हो सके। जबकि दूसरी जानिब सुल्तान सलाहुद्दीन और उसके लश्करियों के पास चमकती हुई तलवारें और नेज़े थे। इस तरह कीचड़, दलदल, बर्फबारी और तूफानी हवाओं के अंदर यूरोप के लश्करियों को एक बार फिर सुल्तान सलाहुद्दीन के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो पीछे हटने पर मजबूर हुए। अपने लश्कर का इस कदर कत्लेआम देखकर यूरोप के अक्सर सालार रिचर्ड और दूसरे हुक्मरानों से ये इल्तमास करने लगे कि लश्कर को पीछे हटा लिया जाए, वरना सुल्तान और उसके लश्करी हमारे लश्कर की अक्सरियत को काट कर रख देंगे। उन्होंने ये भी इल्तमास की कि पूरा इलाका बारिश की वजह से कीचड़ और दलदल बन गया है, खेमे नस्ब नहीं हो सकते और लश्करी इसरार कर रहे हैं कि उन्हें आराम करने का मौका फराहम किया जाए। दरअसल यूरोप के लश्करी सुल्तान सलाहुद्दीन और उसके लश्करियों के साथ जंग जारी नहीं रखना चाहते थे। उन्हें अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही थी, लिहाजा वो पीछे हटना चाहते थे। इस बिना पर रिचर्ड ने दूसरे यूरोपीय हुक्मरानों से मशवरा करने के बाद पसपाई इख्तियार की, लेकिन जो ही यूरोप वाले पसपा हुए तो बर्फबारी और यालाबारी में सुल्तान और उसके लश्करी एक बार फिर उन पर टूट पड़े। यूरोप वाले हैरान थे कि वो खुद और उनके घोड़े कीचड़ में लथपथ हुए हैं और घोड़े दलदल में फंस गए हैं। तेजी से भागना तो दूर की बात, चल नहीं सकते और उनके अपने सिपाही दलदल से निकलने की जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं, उतना ही इसमें और ज्यादा फंस जाते हैं। जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन और उसके लश्करी कीचड़ और दलदल में इस तरह भाग भाग कर उन पर हमलावर हो रहे थे जैसे वो सख्त जमीन पर भाग रहे हों। उनकी ये हालत देखते हुए यूरोप वालों पर बददिली और बेहौसलगी छा गई थी और वो दिल बर्दाश्त होकर अपनी जिंदगी से आजिज आ गए थे। आखिर बड़ी मुसीबत से यूरोप का लश्कर अपने साथियों को कटवाता हुआ, शिकस्त को कबूल करता हुआ वापस भागा। उन्होंने अस्कलान शहर का रुख किया था। दूसरी जानिब सुल्तान सलाहुद्दीन दुश्मन को भगाने और उन्हें बदतरीन शिकस्त देने और उनका खूब कत्लेआम करने के बाद अपने लश्कर को आराम देने के लिए फिर बैतुल मुक़द्दस की तरफ चला गया था। ताहम अपने लश्कर का एक छोटा सा हिस्सा पहले की तरह रमला में दुश्मन पर निगाह रखने के लिए मुतय्यन कर दिया था। अस्कलान के निवाह में पहुंचकर रिचर्ड और उसके दूसरे यूरोपीय हुक्मरानों ने जब अपने अपने लश्करों का जायजा लिया तो पता चला कि रमला के करीब लड़ी जाने वाली जंग में उनके बेशुमार लश्करी मौत के घाट उतर चुके हैं। उन्होंने खुद देखा था कि रमला के निवाह में कीचड़ उनकी लाशों और खून से सुर्ख हो गया था। अपने लश्करियों की इस कदर तबाही और बर्बादी के बाद रिचर्ड ने सब के साथ मशवरा किया और उसके बाद ये तय पाया कि वो सुल्तान सलाहुद्दीन का मुकाबला करने से आजिज हैं। सुल्तान के सामने वो नहीं ठहर सकते और सुल्तान सलाहुद्दीन ने जो फलस्तीन के इलाके उनसे छीने हैं वो उससे वापस लेने की हिम्मत नहीं रखते और अगर उन्होंने मजीद लड़ाइयों का सिलसिला जारी रखा तो फिर उनका मजीद नुकसान होगा और उनमें से कोई भी बचकर और अपनी जान बचाकर यूरोप वापस ना जा सकेगा। उन हालात के तहत फैसला हुआ कि मामला जहां है वहीं छोड़कर वापस यूरोप का रुख किया जाए। लिहाजा रिचर्ड और उसके बाकी हुक्मरान साथी अक्का की बंदरगाह की तरफ रवाना हुए, इसलिए कि उनका बहरी बेड़ा अक्का की तरफ रवाना हो चुका था। वो चाहते थे कि अक्का की बंदरगाह पर बहरी बेड़े पर सवार होकर वापस रवाना हो जाएं। अक्का की तरफ जाते हुए इंग्लिस्तान के बादशाह रिचर्ड ने अपने एक सालार को मुखातिब किया और कहने लगा, तुम मुसलमान कैदियों की हिफाजत और उनकी देखभाल पर मुकर्रर रहे हो। क्या तुमने कभी उनसे पूछा कि उनका सुल्तान कैसा है, किस किस्म का शख्स है जिसने पूरे यूरोप को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया? हमारा लाखों का लश्कर उसके चंद हजार के लश्कर को कोई नुकसान ना पहुंचा सका और वो जगह जगह हमारे लश्कर को शिकस्तें देकर हमारे लश्कर की तादाद कम करता रहा। आखिर वो कैसा इंसान है, किस तरह मुख्तसर से लश्कर के साथ वो इतने बड़े बड़े लश्करों को शिकस्त देने में कामयाब हो जाता है? इस पर रिचर्ड का वो सालार मुस्कुराया और कहने लगा, मैं बेशक मुसलमान कैदियों में रहा हूं,
और मुझे खुद उनके सुल्तान के मुतालिक जानने की बड़ी जुस्तजू थी। मैं कैदियों से सवालात भी करता रहा और उनसे बहुत कुछ हासिल किया। जो कुछ मैं उनसे पूछ सका उसकी तफसील मैं आपसे कहता हूँ। उन कैदियों का कहना था कि सुल्तान सलाहुद्दीन की जिंदगी में जिहाद का जज्बा और मजहबी जोश सबसे नुमायां और अहम है। उनका कहना था कि वो बुनियादी तौर पर खून रेजी का मुखालिफ है, फितरतन गैर जंगजू है, लेकिन जब मजहब, दीन और वतन का सवाल उठता है और कोई उन पर हमलावर होता है तो फिर वो बिल्कुल बदल जाता है। उनका यह भी कहना था कि उनका सुल्तान दुश्मन की तादाद से कभी मरूब नहीं हुआ। वो बड़े से बड़े लश्करों को शिकस्त देने का हुनर जानता है, हर किस्म के मंसूबे को बड़े सुकून से सुनता है और उसके नताइज पर बहस करता है। वो दुश्मन के लश्करियों के सामने और अपने लश्कर के बीचों बीच बेखौफ घूमता है और उसके साथ सिर्फ उसका एक जाती खादिम होता है। उन कैदियों का कहना है कि एक मर्तबा मैदान जंग में वो घोड़े पर सवार था, उसके कुछ सालार उसके साथ थे और वो खामोशी से अपनी मजहबी किताब की तिलावत सुन रहा था। कैदियों का कहना था कि उनके सुल्तान ने अपना तन मन धन जिहाद के लिए वक्फ कर दिया है और कुफ्फार के साथ टकराव के दौरान जिहाद के अलावा वो किसी और मौजू पर सोचता ही नहीं है। उनका कहना था कि उनके सुल्तान ने अपना आराम, अपनी खुशी और अपनी हर मुसरत अपने दीन और अपने वतन पर कुर्बान कर रखी है। वो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इससे भी बड़े बड़े मारका खेज ख्वाब देखता है। उसके जहन में एक ही बात है कि मुसलमानों की नाइत्तेफाकी से फायदा उठाते हुए यूरोप वालों ने जो फलस्तीन के इलाकों पर कब्जा कर लिया है वो उनसे वापस लेगा और यूरोप से आने वालों को समंदर में धकेल कर रख देगा। उन कैदियों का यह भी कहना था कि एक बार उनके सुल्तान ने अपने साथी से पूछा कि शानदार मौत कौन सी होती है। जवाब में उसके साथी ने उससे कहा, खुदा की राह में जान देना सबसे आला और अफजल मौत है। ये सुनकर सलाहुद्दीन ने छाती तानते हुए कहा, कसम है खुदा की, मैं इसी मौत का मुतमन्नी हूँ। उसने अपनी तमाम मता, अपनी ताकत, तंदुरुस्ती और अपनी जान तक नसरानियों के खिलाफ जिहाद करने के लिए वक्फ कर रखी है। अपने लश्करियों का बेहद ख्याल रखता है, उनकी हर जरूरत पूरी करता है। कैदियों का यह भी कहना था कि सुल्तान सलाहुद्दीन एक दीनदार मुसलमान है, उसका मजहब उसकी कुल कायनात है और सिर्फ मजहब के मामले में वो तशद्दुद बरतता है। ताहम इस सिलसिले में कैदियों का यह भी कहना था कि वो किसी ऐसे शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो उसके सामने शरीयत के असूल के खिलाफ काम करे। इस बिना पर वो मादा परस्त और आजाद ख्याल फलस्तीनियों के सख्त खिलाफ है और अक्सर व बेशतर उन्हें सजा देता है। उसका अपना मजहब निहायत रासिख, ठोस और सच्चा है। दौरान जिहाद उसने 2 साल के रोजे कज़ा किए। उसके बाद मुस्तकिल बीमारी और मुसलसल मेहनत से शाका के बावजूद उसने कज़ा किए हुए रोजे दोबारा 2 माह मतवातिर रखे, जो उसकी तंदुरुस्ती के लिए मुज़र थे, लेकिन उसने उसकी कोई परवाह नहीं की। मुसलमान जो अपनी इबादत करते हैं जिसे वो नमाज कहते हैं। उन कैदियों का कहना था कि वो बड़ी बाकायदगी से 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। जुमे को मस्जिद की हाजिरी का उससे ज्यादा और कोई पाबंद नहीं है। कहते हैं उसकी सल्तनत का कारी जब उसके सामने उनकी मजहबी किताब की तिलावत करता है तो अक्सर व बेशतर वो धाड़े मार कर रोता है। आंसू उसके रुखसारों से बहकर उसकी दाढ़ी को भिगो देते हैं। यहाँ तक कहने के बाद रिचर्ड का वो साथी जब खामोश हुआ तो रिचर्ड अफसुर्दा से अंदाज में कहने लगा, अगर मुसलमानों का सुल्तान इस किरदार का इंसान है तो मैं समझता हूँ हम किसी भी महाज पर ना उसे शिकस्त दे सकते हैं और ना उसे पसपा कर सकते हैं और ना ही उससे वो इलाके वापस ले सकते हैं जो उसने नसरानियों से छीन लिए हैं, इसलिए कि वो इन इलाकों की हिफाजत खूब कर रहा है और किसी को इन इलाकों के नजदीक आने नहीं दे रहा और ना कब्जा करने देगा। रिचर्ड फिर दोबारा अपने साथियों को मुखातिब करके कहने लगा, मुसलमानों के सुल्तान से मुतालिक कुछ और जानते हो तो कहो, इसलिए कि ऐसे शख्स के अतवार को अपनाना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। इस पर उसका साथी कहने लगा, मैंने कैदियों से सुना है कि वो साहिब इल्म लोगों की कदर करता है, उनके दर्स बड़े शौक से सुनता है और उनमें खुद भी हिस्सा लेता है। इसके अलावा वो आम लोगों के साथ काम काज करने में भी फख्र महसूस करता है। कैदी कह रहे थे, उनके सुल्तान ने किलों के इस्तेहकाम के लिए मुख्तलिफ काम किए और किलों को मजबूत बनाने के लिए जब काम शुरू होता है तो उनका सुल्तान अपने कंधों पर पत्थर रख कर दौड़ता है और ऐसा करते हुए कभी आर महसूस नहीं करता। ऐसे कामों में सुबह से दोपहर तक और फिर असर की नमाज के बाद से रात तक काम करता है। उनका कहना था कि उनके सुल्तान की तमाम जिंदगी सादा, जफाकश और तायुस से बिल्कुल खाली गुजरी है। कैदी कह रहे थे कि मुसलमानों ने दमिश्क में सुल्तान के लिए खूबसूरत नशिस्तगाह तामीर कराई थी। जब वह मुकम्मल हो गई तो उन्होंने अपने सुल्तान से गुजारिश की कि उन्होंने अपने तौर पर जो नशिस्तगाह बनाई है सुल्तान उसे देखे। कहते हैं सुल्तान जब उस नशिस्तगाह को देखने के लिए गया तो उसे देखकर एक निगाहे गलत अंदाज डालकर बोला, हमने यहाँ हमेशा तो रहना नहीं है, ये मकान उस शख्स के मतलब का हरगिज नहीं हो सकता जो मौत का मुंतजिर रहता हो। हमारा मकसद हयात खुदा की बंदगी करना है। कैदियों का कहना था कि सुल्तान को ऐश और तन परवरी से नफरत है।
اس کے علاوہ وہ اپنی اولاد اور اپنے ملازم تک کے لیے بڑا رحم دل ہے۔ ایک قیدی نے ہمیں بتایا کہ ایک مرتبہ سلطان کے ہمراہ سلطان کا وزیر بہاؤالدین جو گھوڑے پر سوار جا رہا تھا، برسات کا موسم تھا۔ اس موقع پر بہاؤالدین کے گھوڑے کے چھینٹے سلطان پر پڑ گئے۔ بہاؤالدین فکر مند ہو گیا کہ سلطان محسوس کرے گا، لیکن جب اس نے سلطان کی طرف دیکھا تو سلطان مسکرا رہا تھا۔ اس موقع پر کہتے ہیں کہ بہاؤالدین نے اپنے گھوڑے کو سلطان کے پیچھے لگانا چاہا تاکہ پھر سلطان کو چھینٹے نہ پڑیں۔ سلطان نے اسے پیچھے جانے کی اجازت نہ دی۔ اس طرح کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک ملازم نے جوتا پھینکا تو سلطان کے قریب آ کر گرا۔ اس پر سلطان نے منہ دوسری طرف کر لیا اور مسکرا دیا اور اپنے ملازم پر یہ ظاہر کیا جیسے اپنے قریب جوتے کو گرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ قیدی ایک اور بڑی صفت بتا رہے تھے کہ وہ ہفتے میں 2 بار کچھ قاضیوں کے ساتھ ایک جگہ بیٹھتا ہے اور لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرتا ہے اور انصاف کرتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ عدالت میں نہ وہ کسی کی رعایت کرتا ہے، نہ کسی قاضی کو ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہے، نہ کسی کو ناجائز رعایت دینے کا وہ عادی ہے۔ اگر کوئی شخص سلطان یا اس کے بیٹوں کے خلاف مقدمہ دائر کرتا ہے تو خود سلطان اور اس کے بیٹوں کو بھی معمولی انسان کی طرح عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر سلطان یا اس کے بیٹے مقدمہ جیتے ہیں تو جن لوگوں نے مقدمہ کیا ہوتا ہے ان سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ انہیں انعام و اکرام سے نوازتا ہے تاکہ وہ آئندہ بھی ان کی خامیوں اور کوتاہیوں پر نگاہ رکھیں۔ اور طبیعتاً ایسا رحم دل ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک بار ایک عیسائی قیدی سلطان کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس وقت وہ خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن سلطان کو دیکھتے ہی بولا۔ سلطان کا منہ دیکھنے سے پہلے میں حد درجہ خوف زدہ تھا، لیکن اب جب میں نے سلطان کو دیکھ لیا تو مجھے یقین ہو گیا وہ مجھے ایذا نہیں پہنچائیں گے۔ یہ سن کر سلطان مسکرایا اور قیدی کو آزاد کر دیا۔